Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, my dear students. My dears, you all are fine? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And tell me one thing, how do you feel because the school has been started right now? Tell me, bete. Sir, very. Sir, I am not coming. Sir, I am also not No, coming. actually today only but the I am students not. of class 10th have come today. On And our sir, next on our day class class 10th will come. 9th also not coming. When? जो प्रोफार्मा है उसमें क्या करना है? What are you saying, bete? सर जो प्रोफार्मा है उसमें क्या करना है? No, actually you have to take permission from your parents. सर पेरेंट्स परमिशन दे दिए हैं. Then you have to come. सर प्रोफार्मा में क्या करना है? Oh, what it is given in the pro forma, you have to fill up. Feel. Okay. Now, better come to the point. Yes, sir. My dear students, Yes, today we have to, as I think today we have to start a new chapter, My Childhood, written by Mr. APJ Abdul Kalam. Dear my students, actually, Dr. APJ Abdul Kalam has written his autobiography, and his autobiography name is Wings of Fire. And what the extract we are going to study has been selected from the book Wings of Fire. मैंने आपको कहा कि उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम उन्होंने विंग्स ऑफ फायर दिया है. उसी विंग्स ऑफ फायर से इस चैप्टर को लिया गया है. बेटे, इन दिस चैप्टर वी विल नो ओनली अबाउट हिज चाइल्डहुड. केवल उनके चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने जो बताया है उसी को हम लोगों को जानना है. माय डियर स्टूडेंट्स, come and find out. Can you think of any scientist who have also been statesmen? APJ Abdul Kalam, this is question, and the answer is given. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. Means he was a scientist. He was not only a scientist but also 11th president of our country. 11th president. 11, not 11, 11th. But a joke question I'm going to ask you. In which class do you study? 9th or 9th? Class 9. In class 9. 9 or, listen, 9 or 9th? Sir, 9th. 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 Sir, 9th. 9th. This is right answer. Don't say 9. Yeah? 9th. Yeah. Yes, sir. एक्सक्यूज मी बेटे. हाँ, क्या चीज है? हाँ, दे दीजिए अभी हमको. वो तो चले गए, वो नीचे ही गए हैं ममता मैडम के पास, वहीं गए हैं. हाँ, हाँ, मिलेंगे. ओके बेटे. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. उसी अपनी आत्मकथा में इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है. बेटे, चाइल्डहुड जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो दोबारा लौट के नहीं आती. बड़ा मेमोरेबल मोमेंट होता है वो. अब तो हमारे सामने कई सारे संसाधन भी हो गए हैं उन्हें कैद करके रखने का,
हम वीडियो बना करके रख लेते हैं, फोटो खींच करके रख लेते हैं, लेकिन ऐसा भी एक जमाना था जब इन सारी सुविधाओं से हम परे थे। हम अपने बचपन को किसी भी तरीके से एक मेमोरी के रूप में कैद नहीं कर सकते थे। खैर, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 1। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Janul Abidin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an idol helpmate in my mother, Asyamma. I don't recall the exact number of people she fed every day, but I'm quite certain that for more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब बेटे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्लीज श्वेता यादव म्यूट योरसेल्फ बेटे। शोनी यादव, मानसी तिवारी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटे। Yeah. I was born into a middle class Tamil family. I had discussed about class, middle class, upper class, lower class. He's saying that he was born in a middle class family in Tamil Nadu, in the island town of Rameshwaram. रामेश्वरम के एक आइलैंड टाउन जो रामेश्वरम है उसके एक गांव में वो पैदा हुए थे। इन द erstwhile मद्रास स्टेट, erstwhile मीन्स फार्मर, इट इज गिवन इन योर बुक। पहले जो मद्रास स्टेट में आता था। अब my father Janul Abidin had neither much formal education nor much wealth. Dr. APJ Abdul Kalam is saying that his father, he is saying about his father, about his education, कि वो बहुत ज्यादा पढ़े नहीं थे, वेल एजुकेटेड नहीं थे। सर हिंदी के लिए लिंक आया है। हिंदी के लिए लिंक आया है। Yes, sir. हिंदी के लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी बेटा। Yes, sir. रुक जाओ। ओके बेटे, इग्नोर। तो he is saying about his father that he was not well educated. वह बहुत अच्छे एजुकेटेड नहीं थे। अब nor much wealth, बहुत धनाढ्य भी नहीं थे। Despite these disadvantages, despise means on the place of, on the place of these disadvantages, मतलब ये सब हानियों में ही गिना जाता है। ये जो भी कुछ उनके पास नहीं था, इस प्रकार की स्थिति में भी he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He possessed, उन्होंने प्राप्त किया था, great innate wisdom and a true generosity of spirit, means he was a good man. He was very generous because he was having generosity. He had an idol helpmate in my mother. वो generous क्यों थे? क्योंकि आप कह रहे हैं, आप बता रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम himself is saying
His father was generous person because his mother was also a good helpmate. क्योंकि माँ जो है बहुत अच्छी थी. बेटे, there is the movie शौगंध, पुरानी मूवी है, यदि आप देख सको तो कभी देखना. उसमें एक डायलॉग है, just I'm going to tell only one statement, only one dialogue given by Mukesh Khanna from सौगंध movie. अगर किसी घर का मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल तबाह होती है, लेकिन औरत बिगड़ जाए तो 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं. ठीक इसके विपरीत माता जो है, गर्ल्स लिसन, सोनी यादव प्लीज म्यूट योरसेल्फ. माता जो है वो निर्माता होती हैं. तो he had an ideal helpmate in my mother. माँ के रूप में उनको बहुत ही एक आदर्शवादी महिला मिल गई थी, हेल्पमेट मिल गई थी. असियम्मा, whose name was असियम्मा, उनकी माँ का नाम असियम्मा था. I don't recall the exact number of people she fed every day. He is saying that he doesn't know clearly कि वो रोज कितने लोगों को खिलाती थी. कितने लोगों को, इन द सेंस कि बाहरी लोगों को, आउटसाइडर पीपल केम एट हिज हाउस एंड हिज मदर यूज्ड टू सर्व. उनकी माँ खिलाती थी. कुछ बाहरी लोग भी आ जाते थे भोजन करने के लिए. बड़ा जेनरस महिला थी, इसलिए वह खिलाती थी. But I am quite certain that for more outsiders ate with us. लेकिन कह रहे हैं कि मुझे पता तो नहीं था कितने लोग, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ बाहरी लोग भी खाते थे. Then all the members of our own family put together. हम सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठते थे और कुछ एक्स्ट्रा लोग भी आ जाते थे, पिताजी के दोस्त या फिर मोहल्ले वासी, 1 2 लोग 4 लोग ऐसे बढ़ जाते थे. I was one of many children. It means he had many brothers and sisters. कई भाई बहन इनके थे, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये उन सभी बच्चों में से एक थे. A short boy, कैसे थे? A short boy with rather undistinguished looks. बेटे, इसको आपको पढ़ना चाहिए. Undistinguished looked मतलब, पहले इसका प्रोनाउंसिएशन तो आप जान लीजिए. I was one of many children. A short boy with rather undistinguished looks. Undistinguished मतलब साधारण. मतलब I was a short boy. Dr. APJ Abdul Kalam is saying himself that he was a short boy. बहुत लंबे नहीं थे, कद काठी इनका छोटा ही था. और जो इनका जो लुक था, जैसे वो दिखते थे, एकदम साधारण दिखते थे. और born to tall and handsome parents, we lived in our ancestral house. Born to tall and handsome parents. He's saying that his parents were handsome. But हो गया, किसी तरीके से आप थोड़े शॉर्ट हो गए, छोटे हो गए. We lived in our ancestral house. Ancestral means parental, not parental. वह घर जो दादा दादी का होता है, पैतृक, ये अपने पैतृक निवास में रहते थे. इसको लिखने की क्या आवश्यकता है माय डियर स्टूडेंट्स? इसको लिखने की, बताने की ये आवश्यकता है, बिकॉज दिस हैज बीन द नेचर ऑफ ऑल पीपल दैट दे वांट टू चेंज देयर पेरेंटल हाउस. इसको आगे बढ़ना लोग कह रहे हैं.
ये आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी, सबके साथ होता है। जिस घर में हम पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, पता चला पिताजी ने दूसरा घर बनवा दिया है, अब वहां शिफ्ट हम लोग हो रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, या फिर गांव के आसपास भी। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट देयर एंसेस्ट्रल हाउसेस, अपने पैतृक घरों को बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। एंड देयर आर सो मेनी रीजंस, छोड़ने के बहुत सारे कारण हैं। खैर, एनीहाउ, आई डोंट वांट टू talk about that. He is saying that he with his family lived in our ancestral house. आप बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार वालों के साथ अपने पैतृक निवास में ही रहता था, which was built in the middle of the 19th century, जिसे कब बनाया गया था? 19वीं शताब्दी में। which was built in the middle of the 19th century, 19वीं सदी में जिसको बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस, ठीक ठाक। It was a good house and it was पक्का हाउस। बेटे, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, आप देख सकते हैं। इफ यू वांट टू से कि आई हैव अ पक्का हाउस, तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? पक्का, PUCCA, पक्का। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, किस चीज के बने हुए थे? लाइमस्टोन मतलब ईंट के बने हुए थे और उस पर चूना लगा हुआ था, सफेद रंग का। लाइमस्टोन मतलब चूना, चूने का पत्थर। ऑन द मास्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मास्क्यू स्ट्रीट में, मस्जिद वाली गली में हम लोगों का घर था। माई ऑस्टियर, many times I pronounced this word, austere. Austere means without show, means सादा। My austere father, मेरे जो सादगी पसंद करने वाले पिताजी थे, जैनुल आबिदीन साहब, used to avoid all inessential comforts and luxuries, जैसे हमारे यहाँ का एक किसान करता है। One of the farmers of India doesn't like to live a luxurious life, क्योंकि अगर वह लग्जरियस लाइफ जीता है तो खेती बाड़ी कैसे करेगा वो? बेटे, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फार्मर्स। इंडिया इज द लैंड ऑफ फार्मर्स आल्सो। दैट्स व्हाई वी मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, My austere father used to avoid all inessential comforts, जो अनावश्यक आराम तलबी का जो जीवन होता है और लग्जरी का जो जीवन होता है, लग्जरियस लाइफ होता है, उसमें वो बिलीव नहीं करते थे, उसका त्याग करते थे। Don't mind, my dear students, nowadays it has been the condition that our coming generation, I'm not blaming on you directly, but I'm talking about coming generation, the children of coming generation will also like the life of comforts and luxuries. वो तो इस समय भी आप देख सकते हैं, क्या हम लोगों को पसंद है? थोड़ा हम लग्जरियस हो गए हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। Nobody wants to do hard work, कोई कठिन परिश्रम करना नहीं चाहता है। However, all necessities were provided for. He was very simple. लेकिन हम सबकी जरूरतों को, परिवार की जितनी सारी जरूरतें थी, वह पूरा करते थे। It was no doubt. In terms of food, जैसे कि कौन सी जरूरतें घर चलाने के लिए मुख्य होती हैं? फूड, भोजन की आवश्यकता होती है। देयर इज नीड ऑफ फूड। मेडिसिन,
दिस नीड ऑफ मेडिसिन, फैमिली में अक्सर किसी को किसी तरीके की बीमारी परेशानी होती रहती है, मेडिसिन की आवश्यकता होती है। और क्लास, रोटी कपड़ा और तीसरा मकान, इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से इनके यहां हो जाती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन was a very secure childhood both materially and emotionally। आप कह रहे हैं कि my childhood was very secured, बहुत ही सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा जो बचपन था वो मैटेरियली, आर्थिक रूप से, एंड इमोशनली, भावनात्मक रूप से, दोनों तरीके से बहुत ही सिक्योर था। मीन्स क्या क्या कहना चाहते हैं आप? लेट अस कम, लेट अस नो माय डियर्स। नाउडेज it is being happen in most of the families that parents have no time, members of the family have no time to play with। बच्चों के साथ खेलने का, उनके साथ समय बिताने का उनके पास समय नहीं है। हाँ, मैटेरियली दे आर स्ट्रांग, आर्थिक रूप से वे बड़े मजबूत हैं। ईच एंड एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड कैन बी गिवन, जो भी उसका डिमांड है बच्चे का सब कुछ पूरा किया जाएगा। बट इमोशनली देयर इज लैक ऑफ इमोशन। उस परिवार में जहां पर सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, वहां इमोशन की कमी हो जाती है। बेटे, we are really lucky if we have taken birth in the family in which family members love us more than materialistic area। मतलब जो आर्थिक क्षेत्र है उससे अधिक अगर हमसे परिवार के लोग प्रेम करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके साथ दोनों चीजें थी, आर्थिक रूप से भी जो भी इनकी डिमांड होती थी परिवार के लोग पूरा करते थे, इमोशनली बहुत प्रेम भी करते थे। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड बड़ा ही सिक्योर था, किसी तरीके के कठिनाई में नहीं बीता था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तब तक की बात कर रहे हैं जब तक इनके चाइल्डहुड में कोई समस्या नहीं थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में क्या हुआ था कि बंद हो गया था, ब्रोक आउट हो गया था इन 1939, 1939 में। When I was 8 years old, 8 वर्ष का था मैं। Dr. APJ Abdul Kalam is saying that when in his childhood, when he was only 8 years old, the Second World War broke out, and it was the year of 1939. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I have never been able to understand, मतलब पूरे, जब मैं 8 साल का था तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। A sudden demand for tamarind seeds, आप कह रहे हैं कि उस समय एक बाजार में डिमांड बढ़ गया था। टैमारिंड मतलब इमली, आप जानते होंगे, इमली की चटनी वगैरह बनती है। इमली के बीजों का, उसके फल के अंदर जो बीज होता है, बड़ा उसका डिमांड बढ़ गया था बाजार में। अचानक आप कह रहे हैं मैं नहीं जानता क्यों। For tamarind seeds erupted in the market, मतलब इरप्ट हो गया मार्केट में, वो बढ़ गया था, है ना। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street। और
इमली के पेड़ वहां पर बहुत होते हैं। आप क्या किए, बीजों को इकट्ठा करके और गली के नुक्कड़ पर एक दुकान थी, उसी दुकान पर ले जा करके सारे सीड्स को बेच दिया करते थे। तो a day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna, means the earning of one day was only 1 anna। एक दिन का जो कलेक्शन था, एक दिन की जो कमाई थी वो 1 आने की थी। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinawani, our area। अब बेटे, my brother-in-law Jalaluddin, ब्रदर इन ला, ला मतलब ससुराल होता है, ससुराल का जो भाई होता है, तो 2 हो सकता है। ब्रदर इन ला मीन्स या तो इनके जीजाजी हो सकते हैं या तो इनके साले हो सकते हैं। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani, our area। एक्चुअली वहां एक पेपर निकलता था, नाम होता था दीनामणि। Dinamani is the name of a newspaper which used to come in the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam। तो वो इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, इनको कहानियां सुनाया करते थे। कैसी कहानियां? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, नहीं, उस युद्ध की जिसको बाद में मैं दीनामणि पेपर जो उनके एरिया में आता था, कह रहे हैं कि उसके हेडलाइन में मैं पढ़ता था, उसी सब के बारे में वो बातचीत किया करते थे। Being isolated was completely unaffected by the war। Being isolated मतलब अकेले होकर के, आइसोलेटेड मतलब तो आपको मालूम ही है, अकेला होना, तो एकदम अलग। was completely unaffected by the war। unaffected मतलब प्रभावित नहीं होना, है ना, means not influenced। But soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। He is saying that उसी समय इमरजेंसी लग गई, उसी समय पूरे भारत में इमरजेंसी लगी। और उसकी घोषणा हुई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन halt एज रामेश्वरम स्टेशन। एक शर्त वो बता रहे हैं कि उसमें एक शर्त रखी गई थी, जो घोषणा की गई इमरजेंसी का, वे दिन इस कोरोना काल से कम नहीं थे। इमरजेंसी जब लगा हुआ था, जिस तरीके से हम सभी अपने घरों में दुबके हुए थे, इमरजेंसी में भी ऐसा ही होता है। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station। सबसे पहले जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी, हमारा जो नियर स्टेशन था, उसको पहले कैंसिल किया गया। Now train will not stay। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi। Now it was the condition, पेपर आ नहीं पाता था, और आता था तो चलती हुई ट्रेन में से धनुषकोडी जो गांव था और जो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन था, उसके बीच में ही पेपर को ट्रेन से फेंक दिया जाता था। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameshwaram, तो थोड़ा कार्य बढ़ गया। तो इनके जो कजिन थे शमसुद्दीन, मियां शमसुद्दीन ने कहा कि तुम क्यों नहीं, वाई डोंट यू यूज योर टाइम,
Why don't you utilize your time? Why are you wasting your time? तो इन्होंने पूछा कि तब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, कुछ कमाई होगी। तो to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. अब देखिए अब क्या होता है, उन्होंने शमसुद्दीन ने कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, थोड़ा बंडल को इधर से उधर करना होगा, जहां करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद आई विल गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। तो half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Half a century later, 50 वर्ष के बाद, I can feel, इन्होंने जब लिखा अपने बचपन के बारे में तो लगभग 50 वर्ष के हो गए थे, वही कह रहे हैं 50 वर्ष के बाद ये जब लिख रहे हैं तब की बात है। I can still feel and surge, मैं महसूस कर सकता हूं उस वेब को, सर्ज मीन्स वेब, उस वेब को ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। बेटे एवरी वन हु अर्न्स मनी फर्स्ट टाइम, बड़ा ही अजीब महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ, इट इज आई हु हैज अर्न्ड मनी हिमसेल्फ, ये मैं हूं जिन्होंने ये पैसा कमाया। तो बेटे ये 50 साल के बाद अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, उस समय इनको फील हो रहा है, बहुत ही अभिमान, बहुत प्राइड फील कर रहे हैं कि वाओ, आई वॉज द मैन हु हैड अर्नड फर्स्ट टाइम मनी। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Every child is born, करें कि every child of the society has born, सभी बच्चे पैदा होते हैं with some inherited characteristics. Inherited characteristics का मतलब वे विशेषताएं जो हमें विरासत में मिलती हैं, जो हमारे माता पिता से हमारे में आती हैं। विरासत में धन, वैभव, कीर्ति, ये सभी मिलते हैं। विरासत में प्रॉपर्टी और पैतृक गुण भी मिलते हैं। जो पिताजी का गुण है, माताजी का गुण है, वो हमारे अंदर आता है, हर एक बच्चे के अंदर। ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है, जीन ट्रांसफर होते रहते हैं। बच्चों ही सेइंग कि सभी बच्चों के अंदर, सब बच्चे इनहेरिटेट करते हैं, मतलब विरासत में लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं को इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। मतलब एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है, स्पेसिफिक मतलब विशेष होता है, और इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। बट अपने बारे में कह रहे हैं ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और विभिन्न तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, हाउ टू लिव लाइफ। बट आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। ही इज सेइंग दैट हिज फादर वाज नॉट हैविंग टू मच मनी, टू मच वेल्थ, बहुत अधिक पैसे नहीं थे उनके पास, परंतु उनसे विरासत में इन्होंने क्या लिया? ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को भी इन्होंने, आत्मानुशासन, ये दो गुण जो है अपने पिताजी से इन्होंने प्राप्त किया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। वॉट इज गुड? दैट इज गुड। जो अच्छा है वह सचमुच में अच्छा है। फेथ इन गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बेटे जो सुंदर है उसमें ये विश्वास
करने वाले थे, क्योंकि ये गुण इनकी माता जी के अंदर से आया था। बेटे डॉक्टर राधा कृष्णन सेज देयर इज अ चैप्टर विमेन्स एजुकेशन given in UP board class 12th. It is given a statement, women have more compassion than that of men. स्त्रियों के अंदर जो दया भाव होता है वह कहीं पुरुषों से अधिक होता है। दरवाजे पर एक भिखारी आ जाता है, हम लोग देखते ही ईल वर्ड्स का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन महिलाएं जैसे ही सुनती हैं, as soon as they listen, they accept the sound और बोलती हैं कि थोड़ा कुछ दे दिया जाए, जाने दीजिए। तो बेटे उनके अंदर दया भाव हम लोगों से कहीं बढ़ करके होता है, उनके अंदर मीन्स आपके अंदर भी। तो मां से इन्होंने फेथ इन गुडनेस प्राप्त किया था एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और बहुत ही अधिक जो दयालुता का भाव होता है, क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, वो इन्होंने इनहेरिटेड किया था, मतलब अपनी मां से प्राप्त किया था, हेरिटेज के रूप में, विरासत के रूप में इन्होंने प्राप्त किया था अपनी मां से। माय डियर स्टूडेंट्स, इज इनफ फॉर टुडे। नाउ आई एम गोइंग टू unmute you all. The time is going to be over. Yes, sir. But if you have any type of doubt, any question, please put up your question. No, sir. That means you No, have sir. No question? No, sir. No, sir. But wait only 1-2 days. And after 1-2 days, you have to come to your school. Will you come definitely? Sir, I will not come. Huh? Yes, No, sir. sir. Sir, I will not come. No, sir. As your Yes, wish. sir. I will not come. Okay, bete. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay, my dear Thank students. you. Have a Thank nice you. day, sir. Nice day. Thank you, Let's sir. meet next day. Thank you. तुम बोलियो निकल नहीं, मैं तो कहीं पढ़ रहा हूँ। काम करो।